कि so hypothalamic disease is a disorder presenting primarily in the hypothalamus, which may be caused by damage resulting from malnutrition, जिसमें एनोरेक्सिया है, बुलिमिया है, ये ईटिंग डिजास्टर है, वो डिसऑर्डर्स हैं. Malnutrition में ये है कि the person is low weight and he has a fear of gaining weight, and he has or she has a strong desire to be thin. So this results in food restriction. तो ये इंसान जो है ये खुराक ज़्यादा नहीं खाता, और क्योंकि खुराक ज़्यादा नहीं खाता इसलिए जो है इसमें मेल न्यूट्रिशन की वजह से हाइपोथैलेमिक डिजीज हो सकती है, क्योंकि हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन दे हैव one of their function is to you know create hunger in you, and you seek for food and have it. So malnutrition can be one reason of damage to the hypothalamus. Then genetic disorders, some people may have genetic disorder that they carry from their parents, and if somehow the head is x-rayed many times, so radiation may damage the hypothalamus. Surgery of the brain may also damage the hypothalamus. Trauma or some kind of shock or injury may cause. Similarly, lesion, destruction of the neuron may also cause the hypothalamic disease, and tumor may also occur, and these tumor may be the factor, growing tumor that will suppress the hypothalamus, and the hypothalamus will not be able to function properly. It will not be able to control the pituitary gland, which is the master gland. And physical injury, I also discussed before. One of the famous Muslim Indian actor recently died because he had a hypothalamic tumor. And the hypothalamus is the control center for several endocrine function. Endocrine system controlled by the hypothalamus are regulated by antidiuretic hormone ADH, corticotropin releasing hormone, gonadotropin releasing hormone, growth hormone releasing hormone, oxytocin, all of which are secreted by the hypothalamus. So hypothalamus, if there is a disease in the hypothalamus, especially the part which controls the endocrine function, then antidiuretic hormone will not be produced. Corticotropin releasing hormone, gonadotropin release hormone, growth hormone releasing hormone, oxytocin, they're all secreted by the hypothalamus. Damage to the hypothalamus may impact any of these hormones and related endocrine system. So because these are the releasing factors, so they will affect the pituitary, and pituitary gland's dysfunction may lead to other dysfunctions in the body. Hypothalamic diseases therefore affect the functioning of pituitary gland and the target organ controlled by the pituitary. मिसाल के तौर पर पिट्यूटरी जो है एड्रिनल ग्लैंड को कंट्रोल करता है, ओवरीज टेस्टिस को कंट्रोल करता है, थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है. तो हाइपोथैलेमस की वजह से हमें जो डिजीजेस हो सकती हैं वो एड्रिनल ग्लैंड की हो सकती हैं, ओवरीज एंड टेस्टिस की हो सकती हैं, और थायराइड ग्लैंड की हो सकती हैं. So when the hypothalamus is damaged or it is not functioning properly, one may have many types of manifestations. यानी ये हाइपोथैलेमस जब खराब होगा तो उसका इजहार, मैनिफेस्टेशन जो है वो मुख्तलिफ तरह से होगा. Damage to the hypothalamus may cause disruption in body temperature,
regulation. So body temperature will not be regulated because the posterior part of the hypothalamus controls the body temperature. It maintains the body temperature at 37 degrees centigrade. So if the hypothalamus is damaged, control regulation will be affected. Similarly, hypothalamus releases growth hormone, releasing hormone. So growth hormone is released from pituitary, and it causes the growth of the individual. So growth and weight will be affected too, and water balance will be affected because hypothalamus secretes corticotropin releasing hormone, which secretes ACTH from uh, pituitary gland, and ACTH acts upon you know adrenal gland, and adrenal gland releases mineralocorticoids, and sodium and water balance will be affected. Similarly, hypothalamus secretes antidiuretic hormone, which uh, causes the water balance. So it will affect the salt and water balance. Milk production will be also you know affected by the hypothalamic damage. Emotions, because hypothalamus also controls emotions and excitement. So और भी होते हैं कंट्रोल मोशन हो सकते हैं आपको हाइपोपिट्यूटरिज्म हो सकता है जिसमें एक बीमारी होती है इंसिपिटस वो पोस्टल पिट्यूटरी में एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है जो कि आप पानी रीअब्सॉर्ब करता है किडनी ट्यूब्यूल से, जिसकी वजह से आपका वाटर आपका इसका मतलब ये है कि अगर आपका 5 लीटर ब्लड है तो यही रहना चाहिए। अच्छा, तो फिर हाइपोथैलेमस जो है, उसकी डिजीज़ेज़ की वजह से ग्रोथ नहीं होती, बच्चा छोटे कद का रह जाता है और उसमें सेक्सुअल कैपेबिलिटी नहीं होती। Hypopituitarism, the hypothalamus and pituitary are tightly integrated. Damage to the hypothalamus will impact the responsiveness and normal functioning of the pituitary. Hypothalamic disease may cause insufficient or inhibited signaling to the pituitary, leading to deficiency of one or more hormones, such as thyroid stimulating hormone, adrenocorticotropic hormone, beta endorphin, luteinizing hormone, follicle stimulating hormone, एंड मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो क्योंकि हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, और पिट्यूटरी जो है वो थायराइड को कंट्रोल करता है, एड्रिनल ग्लैंड को कंट्रोल करता है, बीटा एंडोर्फिन निकालता है। बीटा एंडोर्फिन जो है ये इंसान को सुरूर बख्शती है और इसको एनाल्जेसिक इफेक्ट है। स्ट्रेस में ये निकलती है ताकि हम स्ट्रेस का मुकाबला कर सकें। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, they are necessary for testosterone production, progesterone production, and follicle development, and also melanocyte stimulate हार्मोन कि आपकी स्किन का कलर जो है वो मेंटेन रहता है। ट्रीटमेंट फॉर हाइपोपिट्यूटरिज्म इन्वॉल्व हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। अगर हाइपोथैलेमस डैमेज हो जाए तो you need to get injections or treatment, oral treatment for the hormone released by the uh, hypothalamus, or you directly stimulate the pituitary through other drugs. Tertiary hypothyroidism. Thyroid gland is an auxiliary organ to the hypothalamic pituitary system. Thyrotropin releasing hormone produced by the hypothalamus signals to the pituitary to release thyroid stimulating hormone, which then stimulates the thyroid to secrete T4 and T3 thyroid. So these hormone T3 and T4 will be released. They will be controlling your basal metabolic rate, and they will be producing the amount of energy needed by the body to keep its temperature at 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखने के लिए T3 और T4 जो हैं ये इतना मेटाबॉलिक रेट रखते हैं हर सेल में कि सेल अपना फंक्शन भी परफॉर्म कर ले, और बिलियन ऑफ सेल जो हैं इतनी हीट प्रोड्यूस कर लें कि आपका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे रहे। तो अगर तो
थायराइड में प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब है कि ये प्राइमरी हाइपोथायराइडिज़्म है। अगर पिट्यूटरी में प्रॉब्लम है, यानी टीएसएच नहीं निकल रहा, तो वो सेकेंडरी जो है वो है। और अगर हाइपोथैलेमिक टीआरएच नहीं निकल रहा, तो इसका मतलब है कि हाइपोथैलेमिक disease है। So thyroid hormones are responsible for metabolic activities. Insufficient production of thyroid hormones result in suppressed metabolic activity and weight gain. जब कोई metabolic activity ही नहीं होगी, तो इंसान जो है ना उसका वजन बढ़ जाएगा। तो hypothalamic disease में therefore have implication for obesity, इंसान मोटा हो जाता है। Developmental disorders. High growth hormone releasing hormone is another releasing factor secreted by the hypothalamus. Growth hormone releasing hormone stimulates pituitary to secrete growth hormone, which has various effects on body growth and sexual development. Insufficient GH production may cause poor somatic growth. हमारी ग्रोथ नहीं होती, हम छोटे कद के रह जाते हैं, 4 साढ़े 4 फुट के। गोनेडोट्रोपिन डेफिशिएंसी हो सकती है, फेलियर टू इनिशिएट और कंप्लीट प्यूबर्टी, यानी प्यूबर्टी क्या है, जब हम सेक्सुअल कैपेबिलिटी हासिल करते हैं। तो सेक्सुअल कैपेबिलिटी और जो हमारा बॉडी का साइज़ है कंप्लीट, यानी व्हेन वी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम चाइल्ड टू एन एडल्ट, we have some sufficient growth hormone secreted as well as और sexual organs जो हैं, they are become capable of producing testosterone and estrogens and spermatogenesis and oogenesis. तो अगर ये ना हो तो इनकम्प्लीट होती है प्यूबर्टी, और जो इंडिविजुअल है वो सेक्सुअली इम्पोर्टेंट होता है, वो केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग नहीं होता, और ये इंडिविजुअल जो है इट गेन्स वेट एंड लो T4 and levels of sex hormones are very low. Hypothalamic tumor is an abnormal growth in the hypothalamus which is located in the brain. We have hypothalamic tumors as well. वो मैंने जैसे आपको बताया था कि अभी रिसेंटली एक डेथ हुई है, तो वो हाइपोथैलेमिक ट्यूमर की है। हाइपोथैलेमस जो है ना वो आपके तालू के ऊपर है, और या नाक के अंदर से उसका ऑपरेशन करना पड़ता है, और उसके लिए बहुत ही कोई माहिर डॉक्टर जो है वही इसका इलाज करता है। तो ये जो है ट्यूमर जो है ये बहुत जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट करता है। द एग्जैक्ट कॉज ऑफ हाइपोथैलेमिक ट्यूमर इज नॉट नोन. It is likely that they result from a combination of genetic and environmental factors. The most common type of hypothalamic tumors are craniopharyngiomas and gliomas. So ये जो craniopharyngioma जो है, it occurs in children and young adults. It is the most frequent cause of hypothalamic dysfunction. The clinical manifestation, ये जाहिर कैसे होता है, हमें क्लिनिकली पता कैसे लगता है कि हाइपोथैलेमिक ट्यूमर है, बिकॉज द इंडिविजुअल हैज विजुअल लॉस। जब हाइपोथैलेमस में ट्यूमर होता है तो ओवर ग्रोथ की वजह से जो है वो क्या होता है कि ये जो है, क्योंकि वहाँ से ही आपकी जो ऑप्टिक नर्व है वो गुजर रही होती है, तो ऑप्टिक नर्व्स पे प्रेशर पड़ता है और विजुअल लॉस हो जाता है, नज़र कमज़ोर हो जाती है, फिर इंसान अंधा भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ से नर्व गुजर रही है ऑप्टिक, और वो ऑप्टिक नर्व जो है ना उसको डिस्टर्ब करता है ट्यूमर। और तो इसलिए जो है वो क्लिनिकली हमें पता लगता है कि हाइपोथैलेमस में अगर ट्यूमर है तो विजुअल लॉस होता है। सिम्पटम्स ऑफ रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर आते हैं, यानी अगर ये दिमाग में ग्रोथ हो जाती है तो कंप्रेस होता है ब्रेन, और ब्रेन के कंप्रेस होने से हेडेक होता है, वॉमिटिंग होती है, हाइपोपिट्यूटिज्म इंक्लूडिंग ग्रोथ फेलियर एंड डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस ये है कि ये आप आगे चल के पढ़ेंगे कि हाइपोथैलेमस में एक हार्मोन निकलता है वैसोप्रेसिन या एडीएच। ये जो है ये किडनी से पानी को रीअब्सॉर्ब करके ब्लड में डालता है। अगर किडनी से पानी को ये रीअब्सॉर्ब करके ना डाले तो तकरीबन डेली इंसान हर वक्त पानी पीता रहता है ठंडा, और हर वक्त यूरिनेशन करता रहता है, तकरीबन 30 लीटर तक भी वो यूरिनेट कर सकता है डेली, जो हम नॉर्मली 1 लीटर
के करीब यूरिनेट करते हैं, तो वो 30 लीटर के करीब यूरिनेट कर देता है और वो बहुत मुश्किल में रहता है, हर वक़्त पानी पीता रहता है, हर वक़्त यूरिनेट कर सकता है। तो हाइपोथैलेमिक डिस्टर्बेंसेस इंक्लूड डिसऑर्डर ऑफ थर्स्ट, तो इसमें आपका डिसऑर्डर बढ़ जाता है क्योंकि थर्स्ट सेंटर जो है वो वहीं मौजूद है और इसमें डिहाइड्रेशन हो जाती है, पॉलीडिप्सिया हो सकता है कि पानी आप बहुत ज़्यादा पिएँ और पॉलीयूरिया भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा यूरिनेट करें। एपेटाइट का भी बढ़ सकती है कि एब्नॉर्मली इंक्रीज़ एपेटाइट एंड कंज़म्पशन ऑफ फूड हो सकती है। टेम्परेचर रेगुलेशन में फ़र्क हो सकता है, बिहेवियर एंड कॉन्शसनेस में भी फ़र्क पड़ सकता है कि हर वक़्त आदमी सोई-सोई सी कैफ़ियत में रहता है और इमोशनल लायबिलिटी भी हो जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्से में आ जाता है और उसका मूड स्विंग करता है, कभी मूड अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, कभी इमोशंस अच्छे होते हैं, कभी बुरे होते हैं। तो इस किस्म के सिम्पटम्स नज़र आते हैं क्लिनिकली क्रेनियोफ्रेंजियोमा में जो ट्यूमर ऑफ न्यूरल सेल्स है। अगर ट्यूमर हो नॉन न्यूरल सेल्स का यानी ग्लियल सेल्स जो हैं यानी जो सपोर्टिंग सेल्स हैं वो तकरीबन ब्रेन में आधे सपोर्टिंग सेल्स होते हैं वो 5 तरह के होते हैं। उनको ग्लायल सेल या ग्लाया बोलते हैं, न्यूरोग्लाया बोलते हैं। ये जो सेल्स हैं ये नॉन न्यूरल सेल्स में अगर हो तो उसको ग्लायोमस बोलते हैं। Gliomas जो है it occurs in children. Most hypothalamic tumors are gliomas. Gliomas are a common type of brain tumor that result from the abnormal growth of glial cells which support nerve cells. Gliomas can occur at any age. They are often more aggressive in adults and in children. तो अगर बच्चों में हो तो ये इतने खतरनाक नहीं होते लेकिन अगर ये बड़ों में हो जाए तो बहुत एग्रेसिव होता है, बड़ी तेज़ी से बढ़ता है और बड़ी तेज़ी से अपना जो है ना अंजाम तक पहुँचा देता है इंसान को। इन एडल्ट्स ट्यूमर इन द हाइपोथैलेमस आर नॉट लाइकली कैंसर दैट हैज़ स्प्रेड आर मोर लाइकली कैंसर दैट हैज़ स्प्रेड फ्रॉम अनदर ऑर्गन। तो आपके पास जो है ना मैं एक वो बाय द वे एक अलग सी बात बता रहा हूँ कि आपके पास जो है ना सर्कुलेटरी सिस्टम में आर्टेरियल सिस्टम है, वेनस सिस्टम है और सब सिस्टम एक डेवलप हुआ था लिम्फेटिक सिस्टम इंसान में। और हायर वर्टिब्रेट्स में। जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये जो है ना हर कैपिलरी नेटवर्क में घुसा हुआ है और वहाँ से ये लिम्फ निकाल के दोबारा ब्लड में डालता है, प्लाज़्मा निकाल के दोबारा ब्लड में डालता है, तकरीबन 3 डे लीटर पर डे। क्योंकि ये हर ऑर्गन में मौजूद है ये लिम्फेटिक सिस्टम की कैपिलरीज़, लिम्फ कैपिलरीज़ इसलिए अगर किसी जगह पे ट्यूमर होता है या कैंसर होता है, तो ये कैंसर को फैला देता है। तो ये हायर वर्टिब्रेट्स में तीसरा सिस्टम डेवलप हुआ था लिम्फेटिक सिस्टम उसका ये फ़ायदा तो ये है कि वो इम्यूनिटी में रोल प्ले करता है, फैट की एब्ज़ॉर्प्शन में रोल प्ले करता है और तकरीबन 3 लीटर डेली जो है वो सीप आउट प्लाज़्मा जो है वो जो टिश्यू में चला जाता है, वो दोबारा ब्लड में डालता है। लेकिन उसका नुकसान ये है कि अगर किसी जगह पे कैंसर हो, तो वो कैंसर फैला देता है। तो ये जो ग्लायोमास हैं ये नॉर्मली कैसे फैलते हैं कि किसी और जगह पे जो है वो है और वो किसी तरह ब्रेन में पहुँच गया है यानी हाइपोथैलेमस तक पहुँच गया है। हाइपोथैलेमस ब्लड ब्रेन बैरियर से बाहर है यानी हाइपोथैलेमस जो है उस तक पहुँच जाता है। तो पीपल विद न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस ये हेरिडिटी कंडीशन है आर एट रिस्क विद for this type of tumor. People who have undergone radiation therapy are at risk for developing tumor in general. तो नॉर्मली जो है ये हाइपोथैलेमस के ट्यूमर आप ये देख रहे हैं। यहीं से नर्व गुजरती है ऑप्टिक नर्व गुजरती हैं, तो ये दोनों ऑप्टिक नर्व्स को दबा देता है और दबाने से हमें नज़र नहीं आता सर, तो ये हाइपोथैलेमिक ट्यूमर है। सिम्पटम्स क्या होते हैं? सिम्पटम्स जो होते हैं हाइपोथैलेमिक ट्यूमर के वो कैचेक्सिया है जिसमें लॉस ऑफ फैट एंड एपेटाइट है, यूफोरिक हाई सेंसेशन है, ये एक छोटी-सी शॉर्ट लिव्ड हमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है हैप्पीनेस की, बैठे-बैठे हैप्पीनेस की स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है। फेलियर टू थ्राइव यानी बच्चे ग्रो नहीं करते, छोटे कद के रह जाते हैं। हाइपर एक्टिविटी जो है ना, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती है बच्चों में।
हाइपर एक्टिव होते हैं। ट्यूमर एक्सटेंडेड टू विजुअल पाथवे कैन कॉज लॉस ऑफ विजन। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ट्यूमर जो है वो इतना बड़ा हो गया है या ऑप्टिक नर्व के करीब है, ऑप्टिक नर्व को दबाता है और विजुअल लॉस हो जाता है। इफ ट्यूमर ब्लॉक द फ्लो ऑफ स्पाइनल फ्लूइड, हेडेक एंड स्लीपीनेस में रिजल्ट फ्रॉम हाइड्रोसेफेलस। हाइड्रोसेफेलस क्या है कि ब्रेन में फ्लूइड जमा हो जाता है। ब्लेड ब्रेन में कुछ पाउचेस हैं खाली जिनमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। सो cerebrospinal fluid in small pouches called वेंट्रिकल्स, ये लेटरल भी होते हैं और ब्रेन के बीच में भी होते हैं, हाइपोथैलेमस के ऊपर। तो ये जो फ्लूइड फिल्ड कैविटीज हैं, इनको वेंट्रिकल्स बोलते हैं ब्रेन के, और इनमें फ्लूइड जमा होता है ताकि अगर हम गिरे या झटका लगे हमें तो एक कुशन की सूरत में ये हमारे ब्रेन को डैमेज ना होने दें। तो अगर ये ट्यूमर जो है उन ट्यूब्स को दबाता है जिसमें सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो है वो मूव करता है तमाम वेंट्रिकल्स में और इस स्पाइनल कॉर्ड में। तो अ, अगर ये उसको दबा दे ट्यूमर तो हाइड्रोसेफेलस हो जाता है कि ब्रेन में फ्लूइड जमा हो जाता है और फ्लूइड जो है प्रेशर डालता है, कंप्रेस करता है ब्रेन को और हेडेक होता है। सो सम ट्यूमर कैन कॉज सीजर इन पेशेंट, इसमें कुछ को दौरे भी पड़ने लगते हैं। अदर ट्यूमर में कॉज प्रिकॉशियस प्यूबर्टी और एलिवेटेड प्रोलैक्टिन लेवल्स, यानी कुछ ट्यूमर ऐसे होते हैं कि वो जो है प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कर देते हैं, यानी प्यूबर्टी लड़कियों में 8 साल की उम्र में सेक्सुअल डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, लड़कों में 9 साल की। तो ये जल्दी 4-5 साल की, 6 साल की उम्र में उनमें लड़कों में बाल नज़र आने लगेंगे और लड़की की ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाएगी, साइक्लिसिटी शुरू हो जाएगी, रिप्रोडक्टिव साइकिल शुरू हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं प्रीकॉशियस प्यूबर्टी, वक्त से पहले जवान हो जाना। या प्रोलैक्टिन की कंडीशन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, और प्रोलैक्टिन की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से वर्जिन खवातीन जो होती हैं, जो नॉन मैरिड अनमैरिड खवातीन हैं, उनमें ब्रेस्ट की डेवलपमेंट और मिल्क की प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। इसी तरह अगर मेल में है तो मेल की ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाती है और मेल जो है उसकी ब्रेस्ट में मिल्क की प्रोडक्शन हो जाती है और उसमें से भी मिल्क निकलने लगता है। इसके लिए ब्लड टेस्ट होता है, सीटी स्कैन होता है और एमआरआई होते हैं इन ट्यूमर्स को देखने के लिए। तो जो है हेल्थ केयर जो है वो देखता है ट्यूमर्स को, रेगुलर चेकअप में ही और शी विल परफॉर्म अ ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम एग्जाम इंक्लूडिंग टेस्ट ऑफ विजुअल फंक्शन। तो वो आपकी आंखों का, जैसे आंखों का डॉक्टर कम नजर आ रहा हो तो आप उसको वो देखता है, तो वो फिर आपको को बकायदा आपकी नज़रों को चेक करता है, देखता है कि आप ऊपर देख सकते हैं, साइड पे देख सकते हैं, नीचे देख सकते हैं, आँखों को हिला सकते हैं। और दूसरा ये वो ये देखता है कि क्या आप जो है आपकी नज़र कमज़ोर हो रही है। रेगुलर जब आप जाएँगे तो वो देखेगा कि हर हर विज़िट पे नज़र कमज़ोर हो रही है। ब्लड टेस्ट फॉर हार्मोन इम्बैलेंस में आल्सो बी डन, क्योंकि अब हार्मोन की एक अपर रेंज होती है, एक लोअर रेंज होती है, तो हमें पता लग जाता है कि ये ट्यूमर जो है, ये जो है प्रोडक्शन किसी हार्मोन की कम करा रहा है या ज़्यादा करा रहा है। डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट ऑफ examination and blood test, a CT scan or MRI can determine whether you have a hypothalamic tumor or not. Visual field testing may be done to check for vision loss and to determine whether the condition is improving or getting worse. Treatment जो है, the treatment depends on the aggressiveness of the tumor and whether it is craniopharyngia, a glioma, or some other type of cancer. Craniopharyngioma जो आपके न्यूरल सेल में होता है, is treated primarily with surgical resection and then radiotherapy. In case of glioma, treatment option involve combination of surgery, radiation, and chemotherapy. Special treatment gamma knife. इसमें रेडिएशन देते हैं गैमा नाइफ से। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो खास उस जगह पे जहाँ ट्यूमर है उधर जो है ये उन सेल को डिस्ट्रॉय करता है ताकि नियर बाय सेल जो है वो टिश्यू जो है वो बच जाए। अगर आप डायरेक्ट रेडिएशन देंगे तो फिर ब्रेन के ट्यूमर के साथ साथ ब्रेन के साथ के एरिया भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो एक इक्विपमेंट है जिसको गैमा नाइफ बोलते हैं, ये खास तौर पर सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन देता है
it will give radiation and destroy the cancerous cell only because it is very focused on some kind of tumors and can be as effective as surgery but pose less risk to surrounding tissue. So अगर खास तौर पर आप ये नहीं कि पूरे के पूरे दिमाग को दे दें या खास हाइपोथैलेमस के एरिया को आप दे दें, लेकिन जहाँ ट्यूमर है सिर्फ उधर ही रेडिएशन देंगे। ब्रेन स्वेलिंग हो जाती है जब आप ये ट्रीटमेंट देती हैं, तो ब्रेन स्वेलिंग कॉज्ड बाय अ ट्यूमर में नीड टू बी ट्रीटेड विद स्टेरॉइड्स। तो फिर स्टेरॉइड्स दे के आप ब्रेन उसको रोक सकते हैं। पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है कि ब्रेन ट्यूमर की जब आप सर्जरी करें तो ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकती है और ब्रेन डैमेज हो सकता है, डेथ भी हो सकती है और इन्फेक्शन भी हो सकती है क्योंकि सर्जरी जो है जब आप उसको खोलेंगे हाइपोथैलेमस में तो यू मे यू नो infect the brain and this may result in seizures or from कैन ये ट्यूमर से जो है सीजर भी हो सकते हैं और जो है वो सर्जिकल प्रोसेस में भी हो सकते हैं। हाइड्रोसेफेलस भी हो सकता है, ब्रेन में पानी जमा हो सकता है और फिर उसके लिए सर्जरी भी हो सकती है या फिर कैथेटर डाल देते हैं। जहाँ से ब्रेन का फ्लूइड ब्लॉक होता है उस जगह पे फ्लूइड जमा हो जाता है और वो उस फ्लूइड के जमा हो जाने से सर में शदीद दर्द होता है। तो नॉर्मली क्या करते हैं कि ब्रेन की जो है ना सर्जरी करके एक ट्यूब डाल देते हैं इस जगह पे जहाँ ट्यूमर है, वो ट्यूब से पानी लेके जो ब्रेन में पानी जमा हो गया है, वो लेके अंदर ही अंदर वो इसके कान के पीछे से ना वो इसोफेगस में डाल देते हैं। तो इसोफेगस से पानी ब्रेन में जो ज़्यादा जमा हुआ है, वो ट्यूब के ज़रिए सारा स्टमक में चला जाता है और बंदा जो है ना वो नॉर्मल फिरता है नज़र आएगा आपको, लेकिन आपको नहीं पता होगा कि उसके ब्रेन से एक ट्यूब निकल के जो है वो जा रही है नीचे और वो ट्यूब जो है वो पानी लेके जा रही है और उसका हेडेक जो है वो कम हो जाएगा। तो क्या पॉसिबल एक्सपेक्टेशन होती है कि क्या होगा? प्रोग्नोसिस क्या है? प्रोग्नोसिस है कि एक्सपेक्टेशन हम क्या करेंगे, क्या होगा? वो डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ ट्यूमर क्या है। ठीक है? और लोकेशन ट्यूमर क्या है, ग्रेड क्या है, वो पहले स्टेज में है, दूसरे स्टेज में, तीसरे स्टेज में, साइज़ क्या है ट्यूमर का और जनरल हेल्थ पेशेंट की क्या है। तो इन सब चीज़ों को देख के डॉक्टर फिर अंदाज़ा लगाता है कि ये इंसान बच जाएगा, कितने अरसे ज़िंदा रहेगा, कितने अरसे के बाद मर सकता है। तो ये प्रोग्नोसिस है और फिर जब क कब मेडिकल प्रोफ़ेशनल से कॉन्टैक्ट करना चाहिए? अ, अगर किसी बच्चे में इस किस्म के सिम्पटम नज़र आए जो हमने डिस्कस किए हैं, वो जो है हमें फ़ौरन फिर प्रोफ़ेशनल के पास जाना पड़ेगा, रेगुलर चेकअप भी कराना पड़ेगा। एबनॉर्मल वेट गेन और अर्ली प्यूबर्टी का अगर बच्चे में ऐसा प्रॉब्लम है। अब एंडोक्राइन इफ़ेक्ट ऑफ हाइपोथैलेमिक ट्यूमर एंड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो अगर कोई हार्मोन बढ़ गया है कि कम हो गई है कंसंट्रेशन, तो उसकी कंसंट्रेशन आप जो है कैसे ट्रीट करते हैं कि फिर आप उसको बाहर से हाइपोथैलेमस जो रिलीजिंग फैक्टर निकालता है या इनहिबिटिंग फैक्टर निकालता है तो उसको आप बाहर से देते हैं अगर हाइपोथैलेमस में अंडर प्रोडक्शन हो हाइपोथैलेमिक हार्मोन की लाइक ग्रोथ हार्मोन की। इडियोपैथिक हाइपोगोनेडोट्रोपिक हाइपोगोनेडिज्म। इडियोपैथिक जो है ये वो डिजीज है या मेडिकल कंडीशन है जो बगैर किसी अननोन ओरिजिन की होती है या जिसका बज़ाहिर हमें पता नहीं होता कि ये क्यों हो रही है। तो इडियोपैथिक इसमें क्या होता है कि बंदा जो है वो इनफर्टाइल होता है, उसमें नहीं बनता एलएच-एफएसएच और टेस्टोस्टेरोन स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होती, ओवोजेनेसिस और एस्ट्रोजन प्रोडक्शन नहीं होती। तो ऐसे मरीज़ को जिसमें हमें नहीं पता कि हाइपोथैलेमिक जीएनआरएच क्यों नहीं निकल रहा और ये शख्स जो है ये क्यों रिप्रोडक्टिवली इनकेपेबल है। So in idiopathic hypogonadotrophic hypogonadism, GnRH is given to stimulate pituitary gonadal axis. सिमिलरली ओवर प्रोडक्शन के हैं कि ओवर प्रोडक्शन अगर हो जीएनआरएच की तो प्रोस्टेट डेवलप हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, इडियोपैथिक
प्रिकॉशियस प्यूबर्टी होती है, यानी अननोन वजह से प्रिकॉशियस प्यूबर्टी यानी अर्ली प्यूबर्टी हो जाती है, और एंडोमेट्रियोसिस हो जाता है, यानी बगैर किसी वजह के जो है यूटेरस डेवलप हो जाती है फॉर कंसेप्शन। तो लॉन्ग एक्टिंग GnRH analogs have antagonistic effect on the pituitary gonadal axis। अगर GnRH आ रहा है तो हम GnRH के एनालॉग देंगे। अगर एनालॉग क्या करना चाहिए उसे नॉर्मली, उसे GnRH की प्रोडक्शन बढ़ानी चाहिए, या नहीं सॉरी LH और FSH की सिक्रीशन बढ़ानी चाहिए। लेकिन जब हम बहुत लंबे तक अरसे तक GnRH एनालॉग देंगे तो उसका एंटागोनिस्टिक इफेक्ट होगा। तो हम अगर प्रोस्टेट का और ब्रेस्ट कैंसर है, या प्रिकॉशियस प्यूबर्टी है, या एंडोमेट्रियोसिस है, तो उस सूरत में GnRH का एनालॉग देंगे और लंबे ट्रीटमेंट करेंगे ताकि वो एंटागोनिस्टिक इफेक्ट हो, और वो प्रोस्टेट और ब्रेस्ट कैंसर को रोके, और इडियोपैथिक प्रिकॉशियस प्यूबर्टी और एंडोमेट्रियोसिस को रोके। इसी तरह एक्रोमेगाली है, ये कार्सिनॉइड है एंड वेसोएक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड सिक्रीटिंग ट्यूमर्स हैं। ये हाइपोथैलेमस के उसमें एक्रोमेगाली यानी हाथ के जोड़, और हाथ जोड़े जाते हैं, पैर जोड़े जाते हैं, मुंह चौड़ा हो जाता है अगर एडल्ट में ट्यूमर हो हाइपोथैलेमिक का। तो इसमें सोमैटोस्टैटिन जो है या इसके एनालॉग्स देते हैं, तो वो ट्रीटमेंट करते हैं। हाइपर प्रोलेक्टेमिया और एक्रोमेगाली एंड पार्किंसन डिजीज जो है, इनके लिए जो है ना डोपामीन एगोनिस्ट दिए जाते हैं, जो कि जिनमें डोपामीन में ब्रोमोक्रिप्टीन एंड कैबरकोलिन जो है ये ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है? ये आपका पहला लेक्चर है, अब हम दूसरे लेक्चर की तरफ जाएँगे।